Welcome back to the next session of accounting. As you are already aware that yesterday I unraveled the essence of accounting. थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि पहला कि human mind has a limitation and we start the business with the intention of earning the profit. And the size of the business has gone huge. It has increased exponentially. There are n number of transactions and events. So when you cannot remember each and everything, you won't be able to decipher how well your business has performed. So for that matter, you need to record things. So accounting helps you in that domain. Accounting is the language of the business. Please understand this thing. That we always say accounting is the language of the business. जो accounting है ये language of the business है. Language का मकसद यही होता है, normal parlance में it should have the ability to make things understandable, comprehensible. It's all because of the language. You are able to understand me. We are able to interact with each other. Same business on its own cannot interact. So for that matter, accounting acts as a medium. We say accounting is the language of the business. So अब इस चीज को ज्यादा सिंपल बनाने के लिए I will not start with the definition of accounting because I have seen most of the teachers what they do, they start with the definition of the accounting. मगर उसमें यही चीज हो जाता है. कल भी मैंने आपको बोला, मेरे सामने मेरा लेक्चर वो भी देख रहा होगा जो MSc फिजिक्स होगा, जो PhD इन केमिस्ट्री होगा, बॉटनी से होगा, कोई जूलॉजी से होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, जिसको अकाउंटिंग का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. तो इफ आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू, they get lost. They are not able to connect the dots. So I have decided that I'll share a story with you, a fictional story, obviously. But I will connect the story this way that at the end of the story, we will be able to at least understand the accounting terminology, because it is very important to know the accounting terminology. Because what people generally do, they start with the accounting concepts. They start with the accounting conventions. But उसमें यही मसला हो जाता है, उसमें अकाउंटिंग वोकैबुलरी आती है, उसमें अकाउंटिंग का बहुत सारे वर्ड्स आते हैं वेयर इन पीपल फेल टू अंडरस्टैंड. जी अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ड यूज हुआ है, ये है क्या? अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है? अब ये करंट एसेट वर्ड यूज हुआ है, ये है क्या? सो बेटर इज टू इक्विप ourselves with the accounting terminology. For that, I'll tell you a story, and that story will serve two purposes. उसके दो फायदे आएंगे उस स्टोरी के. एक, आपको essence of accounting समझ आएगा. खुद ही you will understand that yes, accounting is important. आपको accounting terminology clear होगी. Or we will be able to construct the definition of accounting. हम accounting का definition खुद construct करेंगे rather than by cramming the stuff from the books and puking it out here. नहीं, वो I don't believe in that way of teaching. So एक फिक्शनल स्टोरी है, ये बनाई गई है इसी के लिए ताकि एक पहली बार जब एक बच्चा एक्लिटमाइज हो जाए अकाउंटिंग के साथ, उसको समझ आ जाए कि
उसको समझ आ जाए कि भाई अकाउंटिंग नॉर्मल पैरेलंस में अकाउंटिंग से क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग, और क्या है व्हाट ऑल इट एनकम्पासेस, अकाउंटिंग में आता क्या क्या है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी खुद भी यू हैव टू वर्क हार्ड। मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा इन अकाउंटिंग एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम which will take care of rest of the subjects. We have brilliant manpower. Our human resource quintessence has increased its goodwill exponentially. We have increased our patronage leaps and bounds just because our human capital and we work with integrity. So we will show the same dedication, same zeal and zest while taking this as a challenge that majority of our students should qualify this examination. Now थोड़ा स्टोरी पे आ जाते हैं। हमारी स्टोरी पे, इसको 2 दिन भी इस स्टोरी को लग सकते हैं, बट इस स्टोरी से यही होगा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। एक गाया डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार में, डिस्ट्रिक्ट एक होता है गाया, और वहां के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है वो एग्रीकल्चर होता है, एग्रेरियन इकोनॉमी होती है। वहां पे लोग खेतीबाड़ी करते हैं, वहां से प्रोड्यूस निकलता है, एक थोड़ा सा प्रोड्यूस खुद भी कंज्यूम करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस दे सेल टू द प्राइवेट अथॉरिटीज हु गिव देम सम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे फीड देयर बेलीज ऑन दैट। मगर एक गरीब डिस्ट्रिक्ट होता है ये, वहीं पे 4 दोस्त रह रहे होते हैं। इन्हीं 4 दोस्तों की ये कहानी है। यू हैव लक्ष्मीनाथ, यू हैव बद्रीनाथ, यू हैव सुरेंद्रनाथ एंड यू हैव दरिंद्रनाथ। ये 4 दोस्त होते हैं, यंग होते हैं, बचपन से आपस में इनकी दोस्ती होती है, और एक दिन ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉनसून्स वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ सो दैट वी कैन गिव अ गुड क्वालिटी लाइफ टू आवर किड्स। तो बड़ा परेशान होते हैं ये, मगर टेक्निकली ऑल ऑफ देम आर करोड़पतिज, क्योंकि इन सब के पास लैंड होता है, इन सब के पास लैंड होता है। एवरीवन अमंग देम हैज 50 कनाल्स ऑफ लैंड। एकर्स बोलो, कनाल कैसे आप, 50 कनाल्स ऑफ लैंड। इन सब के पास 50 कनाल्स ऑफ लैंड होते हैं, और वहां उस डिस्ट्रिक्ट में पर कनाल लैंड का कीमत 4 लाख रुपया होता है। तो टेक्निकली सबके पास इनमें 2 करोड़ रुपया होता है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लैंड। वो लैंड में इन्वेस्टेड होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड इनका होता है उसी में इनका ये। तो एक दिन लक्ष्मीनाथ थोड़ा इनमें से अग्रेसिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो इनके साथ ये बात कर रहे होते, एक दिन बैठे होते हैं कि मतलब परेशान होते हैं, भाई क्या मसला है, क्या माजरा है, हम बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चों को वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। तो बड़े परेशान उस मामले में होते हैं। नाउ लक्ष्मीनाथ टेल्स देम कि टेक्निकली वी ऑल आर करोड़पतिज, so he makes them understand that we'll do one thing. I have 50 canals of land, Badrinath has, Surendranath has, and the next fellow Darindranath has. We all have 50 canals of land. And per canal here costs 4 lakhs. So if we sell it, we have 8 crore rupees. We can go to any big city, start a business, and give our kids the life they deserve. We give them quality education, quality health care, quality food. So 3 of them resist.
Badrinath resists, Surendranath resists, and Darindranath resists. They say, no, 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 no. We will not. This land is our mother. This agricultural land, ये माँ है हमारी. We cannot sell it. No one ever benefits by selling the, क्योंकि किसान के लिए बहुत, क्योंकि actually farmers होते हैं ये सारे. But then Lakshminath is adamant. He says, नहीं, I have to improve the standard of living of my family. So I cannot. So he waits. He tells them कि एक festival इनका अपना होता है, वो आएगा तो उसके बाद I'll sell the land and I'll go. तो बहुत मनाते हैं इसको, but then he is adamant. इसने ठान ली होती है कि नहीं, अब यहां कुछ होने वाला नहीं है. I'm going to sell the land. तो one day he contacts the property dealers or the people there, and एक दिन आता है, he sells his land. Now ये सारी स्टोरी फिलहाल लक्ष्मीनाथ पे डिपेंडेंट होगी. तो what he does, Mr. Lakshminath, अब इसके पास, अब ये गरीब नहीं है, इसके पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है. Now he has cash worth 2 crore rupees. Ab he bids adieu to all his friends. There is emotional goodbyes and all that. So he leaves. And he goes to a big city that's called Hyderabad. इसको कुछ जान पहचान वहां होती है, तो he goes to Hyderabad. Now, after going to Hyderabad, now they stay in some rented flat. Obviously, इसके पास पैसा है, 2 करोड़ है, और जो बाकी मकान वहां बेच दिया है उसका भी पैसा है इसके पास. तो 2 करोड़ को ये लॉक कर देता है कि भाई ये इस पैसे से मुझे कोई खर्चा नहीं करना है पर्सनल पे. जो मैंने बाकी अपना मकान बेच दिया, वहां 10-20 लाख रुपए मेरे पास है, वो मुझे गुजारा करने के लग जाएगा. तो अब ऑब्वियसली बात है, ऐसा भी नहीं है कि he has to now start a business, because he is adamant that मैं बड़े शहर जा रहा हूं, बड़े सपने देख रहा हूं, तो मुझे कोई बिजनेस शुरू जरूरी करना है. I have to start a business. मगर you all know, तो मुझे ये तो मेरा टॉपिक है नहीं जो मैं ये बोलने वाला हूं, मगर थोड़ा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं. Whenever anyone among you wants to start a business, you won't directly go and start a business. First, you will scan the environment. You'll go. आप नई जगह जा रहे हो, आप देख रहे हो भाई यहां किस चीज की डिमांड है ज्यादा, मेरा इंटरेस्ट किस में है, भाई क्या चलेगा ये चीज, क्या एक्सपर्टीज चाहिए. तो ये लुक्स 1-2 दिन ये देता है, तो इसको समझ आता है हैदराबाद की सिटी ये घूम रहा होता है, तो इसको लग रहा है भाई बेहतर है मैं गोल्ड का बिजनेस करूं. इसको लगता है हैदराबादी पीपल आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग गोल्ड. इनके बहुत सारे फेस्टिवल्स, मैरिज और गोल्ड बिजनेस, इसको बस ये हो जाता है इसको अंदर से कि भाई आई विल बी अ गोल्ड स्मिथ, आई विल बी अ गोल्ड मर्चेंट, तो आई विल बी द गोल्ड डीलर. तो अब ये अपनी जगह क्लियर होता है, भाई मुझे गोल्ड का बिजनेस करना है, अब ये क्लियर अपनी जगह होता है. मगर ही विल नॉट डायरेक्टली गो इनटू द गोल्ड बिजनेस, बिकॉज इसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसको कोई वैल्यू चेन एनालिसिस पता नहीं है. ही डजंट अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द गोल्ड बिजनेस. ही डजंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस इन्वॉल्वड इन द गोल्ड बिजनेस. भाई कहां से लाना है, कहां बेचना है, कौन मेरे कस्टमर्स होंगे, वो सब इसको पता नहीं है. बट देन ही नोज कि इस बिजनेस का यहां स्कोप है. तो इसका कोई दोस्त वहां होता है, वो इसको मशवरा देता है, 2-3 महीने आप किसी गोल्ड के कारखाने में काम करो, जहां आपको आइडिया मिलेगा भाई आता कहां से है गोल्ड, बिस्किट्स कहां से आते हैं गोल्ड के, वो जो बिस्किट्स बड़े बड़े आते हैं, तो उनको कैसे फिर कन्वर्ट किया जाता है डिजाइन्स में, लेटेस्ट डिजाइन्स क्या है आज, मार्केटिंग कैसे की जाती है. तो फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली ही हैज द मनी. बट नाउ मसला क्या है, नाउ ही नीड्स टू गेट ट्रेन्ड इन दिस. तो ये क्या करता है, ये एज अ मुलाजिम एक गोल्ड कारखाने में काम करता है. ऑलरेडी फेमस गोल्ड का कारखाना होता है, वहां पे ये काम करता है. अब जब ये वहां काम करता है,
इसको एक आइडिया मिलता है भाई ये गोल्ड बिजनेस है क्या ऑल अबाउट. नाउ राइट नाउ ही इज इन द ट्रेनिंग प्रोसेस वेयर इन ही इज अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नोबडी नोज. ये तो करोड़पति है अपनी जगह, इसको कॉन्फिडेंस है भाई मुझे सीखना है काम, पैसा तो मेरे पास है, पैसा लगा देना है और आई विल स्टार्ट अर्निंग. तो चुपचाप वही बेसिक साधारण सी जिंदगी गुजार रहा होता है वहां पे, क्योंकि ये बड़ा चालाक होता है, पता होती है, बड़ा अच्छा इंटेलेक्ट इसका अच्छा होता है, शार्प होता है, कि पता होती है इसको कि भाई मुझे मेरे पास वो 2 करोड़ जाया नहीं करना है. मैं इसी 2 करोड़ से कल को बिजनेस करके एक एम्पायर एस्टैब्लिश करूंगा और मैं वही जो बेस्ट एजुकेशन अपने किड्स को देना चाहता हूं, अपनी फैमिली को बेस्ट हेल्थ केयर देना चाहता हूं, बेस्ट फूड देना चाहता हूं, बेस्ट लाइफ देना चाहता हूं, एक सुकून वाली जिंदगी देना चाहता हूं, तो वो मुझे पॉसिबल है जब मैं ट्रेन होके उस बिजनेस को मैं स्टार्ट करूं और अपना ड्रीम बिल्ड करूं, द गोल्ड मैन ऑफ हैदराबाद बन जाऊं, द गोल्ड किंग ऑफ हैदराबाद बन जाऊं. तो अब वक्त आ जाता है, अब ये 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो उस काम से इसका वो रोजमर्रा का ये चल रहा होता है और फाइनली एक दिन आ जाता है जिस दिन अब ये डिसाइड करता है दैट यस नाउ लक्ष्मीनाथ इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस. अब जाहिर सी बात है भाई बिजनेस स्टार्ट करने में 2 चीजों की अशद जरूरत होती है. एक है आइडिया. आइडिया आपके पास होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. कल को कोई निकल रहा है बोल रहा है मैं बिजनेस करूंगा, सबसे पहले उसके बाद आइडिया होना चाहिए और आइडिया की फिर फिजिबिलिटी देखी जाती है, भाई ये चलेगा, आइडिया तो इसके पास है और वो फिजिबल आइडिया भी है क्योंकि ये काबिल बंदा था, इसे स्कैन किया था सारा एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ हैदराबाद इसे स्कैन किया था, इसे इसको पता चला था भाई ये गोल्ड का, गोल्ड के लिए ये सबसे बेस्ट है यहां पे. तो आइडिया इसके पास ऑलरेडी था. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू टर्न दिस आइडिया इनटू अ रियलिटी दैट्स कॉल्ड मनी, और अकाउंटिंग पैरेलेंस में उसको कैपिटल बोलते हैं. तो पहला वर्ड आपने आज सीखा दैट इज कैपिटल. आज तक बहुत सारे आप में से जिनको अकाउंटिंग के साथ कोई वास्ता नहीं है, आज तक आपके लिए कैपिटल यही था कि किसी मुल्क की राजधानी कैपिटल होती है. जैसे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, जैसे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है. आपको आज तक वही बहुतों को अंदाजा होता. अब हाँ, जो कॉमर्स वाले बंदे हैं, मैनेजमेंट के बंदे हैं, एमबीए किए हुए हैं, एमएफसी किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, उनको आइडिया है. तो आज से आपको भी आइडिया मिला दैट कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी which is contributed by the owner and then invested in the business to start the operations of the business. So basically, capital is that amount of money with which the business is started, which is required to start the business. तो आपको आज अंदाजा मिला भाई, पहला वर्ड आपने सीखा that is capital. जब एक ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं. वो कल को आपको बिजनेस शुरू करना होगा या लक्ष्मीनाथ साहब को बिजनेस शुरू करना था. अब बिजनेस शुरू करने के लिए ही हैड द आइडिया. नाउ टू टर्न दैट आइडिया इनटू अ रियलिटी you need funds, and those funds when invested in the business is known as capital. तो जब भी आप पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, that is known as capital. अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है
दे कंफ्यूज कैपिटल विद इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि क्या कैपिटल और इन्वेस्टमेंट सेम है? नहीं जी, ये सेम नहीं है, फर्क है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज सिंपली आप अपना प्राइवेट कंजप्शन, आप अपना पर्सनल कंजप्शन सैक्रिफाइस कर रहे हो विद द इंटेंशन टू अर्न हायर रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। तो कल को आप, मेरे पास पैसा है, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस नहीं है। या मेरे पास पैसा है, मैंने गोल्ड खरीदा, नॉट विद द इंटेंशन दैट आई एम गोइंग टू बी अ गोल्ड स्मिथ और अ गोल्ड डीलर और अ गोल्ड, नहीं, मैंने ये खरीदा, मुझे पता है दैट इन द फ्यूचर गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, सो मैंने अपना प्राइवेट कंजप्शन भी सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस इन द सेंस, मुझे जाना था भाई दुबई घूमने जाना था, दुबई घूमने में मुझे 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। मैंने सोचा नहीं, मैं अपने डिजायर स्किल करूंगा, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, मैं गोल्ड खरीदूंगा। 5-4-6 साल बाद ये 2.5 लाख रुपए मुझे 4, 4.5, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए बन जाएगा, जितना गोल्ड प्राइसेस में फ्लिप आ जाएगा। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। Because in investment, you think, you strategize, you invest the money and you keep it locked. उसके बाद आपको उसमें कोई सोच विचार नहीं करना है, that's invested. आपने कोई लैंड खरीदा कहीं पे, यूजुअली what Kashmiris usually do, they used to buy land. ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था यहां पे। शादी करते थे, बीवी को मेहर दिया होता था, उसको अपना सोना भी होता था, उसको कहीं तरीके से कन्विंस करते थे, भाई ये डाल देंगे, हम जमीन खरीद लेंगे। फिर उस मर्द ने वो जमीन बेचा भी होता था, इस बेचारी को पता ही नहीं होती थी। वो majority of the people, they invest this money in the land. So that is investment, because they invest it in the land with the intention that future में ये जमीन जरूरत लगेगी, ससुर सास के साथ लड़ाई करके निकल जाएंगे और ये आगे हमें जरूरत लगेगी, हम जी वहां पे रह जाएंगे, या इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हमें फ्यूचर के लिए जरूरत लगेंगे। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज। इन इन्वेस्टमेंट यू ओनली स्ट्रेटेजाइज, भाई मुझे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है या मुझे डायरेक्टली किसी फिक्स्ड एसेट में पैसा डालना है, तो जी डाल दिया, दैट्स इट, रख दिया, दैट्स इन्वेस्टमेंट। बट जब आप पैसा बिजनेस में डालते हो, अपने बिजनेस में, जिसके बारे में तुम्हें दिनों रात सोचना है, जिसके बारे में तुम्हें हमेशा सोचना है, भाई ये ग्रो होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ये करना है हर दिन, यू हैव टू बी बिजी, दैट्स कॉल्ड बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। सो जब आप बिजनेस, अपने बिजनेस में पैसा डालते हो, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। और जब आप किसी एसेट में बिजनेस पैसा डालते हो, दैट्स इट, डाल दिया, दैट्स इट, उसके बाद आपको कुछ सोच विचार नहीं करना है, दैट इज प्योर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने जी अभी यस बैंक के शेयर्स खरीदे, जेके बैंक के शेयर्स खरीदे, टाटा पावर के शेयर्स खरीदे, खरीद लिए शेयर्स, रख लिए अपने डीमैट में, बस शेयर में गिराव चढ़ाव हो रहा है। एक वक्त आया, मुझे लगा अभी ग्रो हुए हैं बहुत, आई कैन सेल और आई रिसीव द डिविडेंड, दैट्स प्योर इन्वेस्टमेंट। बट कैपिटल इज सिंपली व्हेन यू इन्वेस्ट, तो ये कभी इनको सिमिलर नहीं समझिएगा। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस so that you will start earning profits after every year. Or simply that amount of money with which you start the operations of the business is known as capital. क्योंकि तब तक कभी बिजनेस शुरू नहीं होगा जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगा। अब यहां मसला है भाई, कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है वही ओनर होता है। ओनर वही होता है, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल। अब इधर मॉडल आते हैं, ये बात अब हम डिस्कस करेंगे। जिससे आगे मैं स्टोरी लू, स्टोरी का क्रक्स अभी यही है,
स्टोरी हमने आगे नहीं ली अभी। स्टोरी हम जहां चले वो नहीं होता है। जब आप कोई शो देख रहे होते हो, वेब सीरीज देख रहे होते हो, वेब सीरीज में जब स्टोरी शुरू होती है फिर वो वहीं से आगे चलती है। फिलहाल आपको याद रखना है, लक्ष्मीनाथ ट्रेन हो गया। लक्ष्मीनाथ ने 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग ली। अब उसके पास कैपिटल है। कितना कैपिटल है लक्ष्मीनाथ के पास? भाई उसके पास कैपिटल है 2 करोड़ रुपया। नाउ ही हैज 2 करोड़ रुपीज विच ही इज रेडी टू इन्वेस्ट in his own business, not in other rest of the assets, fixed assets, जहां पे वो इन्वेस्टर कहलाएगा। फिर नहीं, ये बिजनेसमैन कहलाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर कहलाना चाहता है। तो इसीलिए ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इन हिज ओन बिजनेस। अब एक बात यहां उठी, अब फिलहाल आप इधर रोक दूंगा मैं स्टोरी, मगर अब यहां बात उठी इंपॉर्टेंट कि भाई अब ये शुरू करने वाला है बिजनेस, ये क्या फॉर्म रखने वाला है। हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। भाई फॉर्म क्या रखेगा, इसको रजिस्टर क्या करेगा। आज हमें होती है फॉर्म्स जहां पे इसको खुद चूज करना है। एक होता है सोल प्रोपराइटर, इनको मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। एक होता है सोल प्रोपराइटर, या ये बिजनेस को रजिस्टर करेगा एज सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सोल प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ही इज गोइंग फॉर दिस मॉडल, सोल प्रोपराइटर। बिजनेस कौन सा कर रहा है? गोल्ड का। मगर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या है? ओनर कौन रहेगा? ओनर ये अकेला खुद रहेगा, तो इट विल बी अ सोल प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Another, we have partnership form of business organization. I'll be discussing all of these with you. Partnership form of business organization. Next, you have Hindu undivided family. ये भी एक form of business organization है, form of ownership है. Then you have company, जिसमें आपकी private companies भी आती है और आपकी public companies भी आती है। नेक्स्ट यू हैव LLPs, कुछ ही टाइम हुआ इसको, यूके से इमर्ज हुआ। These are known as limited liability partnership firms, LLP. And then you have OPCs, one person company, and you have cooperative societies, cooperative firms, cooperative. ये सब तरीके हैं। These all are the forms of business organization. मगर हमारे जो ये मित्र है लक्ष्मीनाथ, इसने डिसाइड किया that the form of business organization he is going to use, that will be the sole proprietor. तो इंशाल्लाह कल मैं इस पे रोशनी डालूंगा ये sole proprietor होता क्या है और स्टोरी को आगे लेते जाएंगे। थैंक यू सो मच।